ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے. ہاکی کے لیے رکھے اور بلکہ امیجیٹ انہوں نے ریلیز بھی کیے. وہ فنڈز پاکستان سپورٹس بورڈ کو مل گئے امیجیٹ اسی وقت. اور قائمہ کمیٹی جو آئی پی سی کی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دے آر ویل آرگنائزڈ, ویل مینیجڈ, دے کین مینیج ایوری تھنگ فار یو فار دا ہاکی. ہماری جتنی ٹیمیں باہر جائیں گی پرو لیگ کے لیے, میں دوسری بات نہیں کر رہا ہوں, باقی بالکل ٹھیک رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے. وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, قابل احترام ہے میرے لیے, اور ہمارے منسٹر بھی ہیں. انہوں نے کہا فیڈریشن جو ہے وہ ایف آئی ایچ کے انڈر ہوتی ہے, ہم فنڈ دینے کے پابند ہیں, ہم فنڈ دیتے ہیں اور آگے ساری جتنی بھی فنکشن ہے وہ ذمہ دار پی ایچ ایف ہے. ادھر میں اس چیز کو مسترد کرتا ہوں. پرو لیگ کے لیے خاص طور پہ فنڈز پاکستان سپورٹس بورڈ کے پاس تھے. قائمہ کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا اور اس کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی کہ ہم اس کو آرگنائز کر کے دیں گے. جب پرو لیگ اناؤنس ہوئی تو 30 اکتوبر 2025 کو پاکستان سپورٹس بورڈ کو میرا جنرل سیکرٹری رانا مجاہد گیا. پورا شیڈیول ان کے سامنے رکھا گیا. اس میں یہ تھا 9 دسمبر سے 14 دسمبر ارجنٹینا کے ساتھ ہمارے میچز ہوں گے ارجنٹینا میں, اور 10 فروری سے 15 فروری آسٹریلیا میں, 13 سے 21 جون بیلجیم میں, اور 23 سے 28 انگلینڈ میں. شیڈیول دینے کے باوجود رانا ثناء اللہ صاحب کے جو منسٹری ہے, جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں, یہ ان کی نالائکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے فیس کیا ارجنٹینا میں, ہماری ٹیم گئی, اس میں ہمیں فرسٹ فیز میں جو فیس کرنا پڑا, 13 تاریخ کو ہوٹل بکنگ کے لیے ہم نے ای میل بھیجی, پھر 14 کو بھیجی, پھر 18 کو بھیجی. 48 گھنٹے کی مہلت دی تھی ہوٹل والے نے ارجنٹینا میں, ارجنٹینا ہاکی نے ہمیں مہلت دی تھی. اس کے بعد دے فیلڈ ٹوٹلی. پاکستان سپورٹس بورڈ فیل ہو گیا ان چیزوں کو مینیج کرنے میں, ہوٹل کو پیسے دینے میں ٹوٹلی فیل ہو گیا. اب ہاکی فیڈریشن کے پاس اتنے فنڈز موجود نہیں تھے کہ وہ اپنے سے مینیج کر سکیں ان چیزوں کو. 24 تاریخ کو 24 نومبر کو میں خود چل کے ایف آئی ایچ کے پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہوں اور میں ان سے مدد کا طلبگار ہوتا ہوں کہ سر میرے پاس فنڈز نہیں ہیں فیڈریشن کے پاس, ہم مینیج نہیں کر سکیں گے کیونکہ 7 سال بعد پاکستان ہاکی کو موقع ملا ہے پرو لیگ کا. آپ مہربانی کریں ہمارے ہوٹل کی پیمنٹ آپ کر دیں, بعد میں ہم آپ کو پیسے دلوا دیں گے. ٹیم ارجنٹینا سے ہو کے آ گئی, 1 مہینے بعد وہ پیسے ہمیں واپس ملے. ایون کہ اس میں سے ابھی بھی وہ ارجنٹینا, آسٹریلیا سے بھی ہم ہو کے آئے, ارجنٹینا کے $3,720 اس وقت بھی ہم نے دینا تھا. جو کل میں نے اپنے فنڈ سے, جو اویلیبل فنڈ میرے پاس تھے, میں نے مناسب سمجھا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا کوئی بقایا جات میری طرف کم از کم نہ ہو. انہوں نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا, بڑا فیور کیا. اب دوسری طرف جب آتے ہیں, سیکنڈ فیز جو ہمارا ہے آسٹریلیا کا, آسٹریلیا کے بالکل سیم ایکسرسائز ہم نے کی. ہم نے 2 جنوری کو ان کو ای میل بھیجا پاکستان سپورٹس بورڈ کو کہ بھائی جان ہوٹل آ گیا ہے, اس ہوٹل میں ہل ٹری جو ہوٹل ہے اس کے لیے ہمیں پیمنٹس چاہیے, آپ ڈائریکٹ پیمنٹس بھیج دو. ہم نے تو فرسٹ ڈے سے کہا تھا کہ پیسے سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے, آپ کر لیں مینیج. پھر 13 جنوری کو دوبارہ ہوٹل کا آیا, ڈیڈ لائن ہے, اب آپ اس کے بعد آپ کے لیے ہوٹل نہیں رکھا جائے گا, کمرے نہیں رکھے جائیں گے. ادھر بھی دینے میں ناکام ہو گیا پاکستان سپورٹس بورڈ. 1 دن بعد پھر میں جاتا ہوں پاکستان سپورٹس بورڈ میں خود چل کے جاتا ہوں.
मैं जाके उनसे गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करो इनके पैसे भेज दो। कहते हैं सर हम तो डरते हैं ऑडिट पैरा से, हमें 2 महीने मज़ीद लगेंगे। अगर आपको हमसे भिजवाने हैं पैसे 2 महीने मज़ीद लगेंगे। मैंने कहा आपके 2 महीने पूरे नहीं होते क्योंकि ये फ़ंड्स आपको सितंबर में अक्टूबर में मिले हैं, आपको उस वक़्त से मैनेज करना चाहिए था। डॉलर की जगह $70,000 मांगा गया। अब $70,000 हॉकी फेडरेशन कहाँ से लाती? फिर जो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती थी, मैं समझता हूँ हमारी मैनेजमेंट ने बेहतरीन से बेहतरीन अरेंजमेंट्स वहाँ की। लेकिन जो सोशल मीडिया के ज़रिए से अफवाहें फैलाई गई, जो चीज़ें सामने आई, उस पे मैं वज़ीर आज़म साहब को और फील्ड मार्शल को ख़ास तौर पे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए। ये हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी, जग हसाई जो हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। जिस किसी का भी कसूर है, सबसे पहले मैं हाज़िर हूँ। अगर मेरी तरफ कसूर आता है, ये कसूर काफ़ी नहीं है कि मैं रिज़ाइन करके चला जाऊँ। ये सज़ा काफ़ी नहीं है क्योंकि इधर मुल्क का मामला है, पाकिस्तान का मामला है। एक न्यूट्रल कमेटी बनाई जाए अदारों की, वो प्रो लीग का फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे तहकीकात करें। जो कमेटी का ज़िक्र राना सनाउल्लाह साहब ने किया था, वो स्पोर्ट्स बोर्ड का कमेटी बनाया गया, खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही सज़ा मुकर्रर की। टीम अभी तक पहुंची नहीं है वापस पाकिस्तान, मैनेजमेंट पहुंची नहीं है और डिसीजन आ गया। उनको वज़ीर आज़म साहब को इतला भी कर दिया गया कि जी कि ये कसूर सारा फेडरेशन का है। मैं समझता हूँ कि टोटली कसूर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है। जितनी भी मिसमैनेजमेंट हुई, जितना डिले टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल किए, ये उनकी वजह से ये पिछले 6 महीने से क्या सराहियाँ चल रही थी कि भुट्टी साहब आप जा रहे हैं। मुझे तो वज़ीर आज़म साहब एक पैगाम भिजवा देते, जैसे मुझे अभी पैगाम मिला है, मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ और मैंने अपनी रिज़िग्नेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दी है। इतनी सी बात थी, लेकिन पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, इसके लिए बच्चों को भी इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से कप्तान ने बच्चों को थ्रेट किया, वो तहकीकात से मुझे ये पता चला मेरी मैनेजमेंट से, उसने बड़े बड़े लोगों के मोबाइल फ़ोन निकाल के कॉल्स और मैसेजेस दिखाए कि कम साड़ा हो गया। मैनेजमेंट गई और थ्रेट किया गया बच्चों को, और उसके ख़िलाफ़ हॉकी फेडरेशन ने मिसकंडक्ट के ख़िलाफ़ हमने 2 साल का फ़ैसला किया कि उसको बैन किया। डोमेस्टिक हॉकी एंड इंटरनेशनल हॉकी। अमाद शकील बट 2 साल का बैन होगा इस पर। मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी हो। साहब जब आप रिजाइन दे दिया तो फिर आप मिजाज हैं इसके पाबंदी आयद करने के? जी, ये कल मैंने तहकीकात की थी और जब मेरी टीम पहुंची है, मैंने कमेटी भी बनाई थी, आपको याद होगा, वो सर्कुलेट भी हुआ है। मैंने कल से इस पे बैन लगा दिया है। साहब आप ज़ारा 2.5 साल तक तमाम मामलों को देखते रहे, अब क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान हॉकी को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इदारों को बेहतर किया जा सकता है? हर बंदे का रिजाइन देना तो मसले का हल नहीं है, कौन कितने लोग रिजाइन देते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जितनी भी फेडरेशंस हैं, फेडरेशन के साथ ज़्यादती हो रही है। जितनी भी फेडरेशंस हैं, फ़ंड्स दिए नहीं जाते हैं। फ़ंड्स तमाम के तमाम फ़ंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास होते हैं। 28 करोड़ का 3 दिन में उड़ा देते हैं कायदे आज़म गेम्स के नाम से। उधर कोई पूछ गुछ नहीं है। मुझे तो 2 साल में तकरीबन ये 28 करोड़ नहीं मिले थे।
फेडरेशंस को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बेकारी नहीं बनना चाहिए। कभी उसके दर पे जाएं तो कभी इसके दर पे जाएं। और उसका तरीक़ाकार हॉकी के लिए जो मैंने देखा, और मैंने काफ़ी जगहों पे ये बात भी की, हॉकी का बोर्ड बनना चाहिए और होना भी चाहिए, और इंशाल्लाह होगा भी सही। ये काम इधर नहीं रुकेगा, और हॉकी बोर्ड आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुझे हॉकी बोर्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है और बनेगा। हम बोर्ड के साथ उनको वो एसेट्स दिए जाएं, जो स्टेडियम्स जिनसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, और फिर उनके अपने डिपार्टमेंट्स, जिस तरह पीसीबी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ऑपरेट करें। तो मैं समझता हूँ विद इन 5-6 ईयर्स पाकिस्तान हॉकी दोबारा अपने खोए हुए मुकाम पे आएगा। अगर इस तरीके से चलाना है जिस तरीके से अभी चल रहा है तो बहुत मुश्किल होगा। बुल्टी साहब, न्यूजीलैंड ने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से विड्रॉ किया था पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ऑलरेडी आपके खिलाफ, कितना कॉन्फिडेंट थे? अभी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उस वक्त आपने क्यों डिसीजन नहीं दिया कि हम भी नहीं खेल सकते? देखें, वो उस वक़्त हमें नहीं पता था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वो जो कायमा कमेटी है ये फ़ैसला कर वज़ीर साहब ने हॉकी फेडरेशन को मिलने के बजाय वो अपने पास रखेंगे। जो कमेटी में ये फ़ैसला हुआ है कि दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मैनेज्ड, उनके पास रखवाए गए। और हमने भी कहा ठीक है, अगर आप कर सकते हैं आप करें, हम आपको टीम बना के, मैनेजमेंट बना के दे देंगे। बाकी चीज़ें होटल को आप, आज मैं बताता हूँ, इस बेल्जियम और इंग्लैंड दोनों के लिए हमने ईमेल्स भेजी हुई हैं, आज से 2 महीने पहले से हमने भेजी हुई हैं। देयर इज़ नो आंसर फ्रॉम द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कि उन्होंने वो उन होटलों के साथ क्या किया। फेडरेशन के सदर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। ये उनकी जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।